جی میڈم بتائیے گا، ابھی خبر آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا چیف جسٹس نے کہ اگر گورنر نہیں لیتے حلف تو پھر اسپیکر لے لیں گے. تو یہ بھی سنا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ خصوصی چارے پہ جائیں آپ پشاور اور حلف لیں. بلاول بھٹو گورنر چونکہ کراچی میں تھے تو انہوں نے ہدایت کی ہے گورنر فیصل کریم کنی کو کہ آپ کو ہیلی کاپٹر دیا جائے گا گورنر سندھ کا، تو آپ پشاور جائیں اور حلف لیں. مطلب یہ تو ایک پارٹی کا انٹرنل چینج ہے، باقی پارٹیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا یہ نہیں سمجھ آئے. خیر یہ ہو جائے گا، تھوڑا بہت ایکٹیویٹی ان کی ہوئے ہو جائے گا. زیادہ ایشو تو اس وقت جو عمران خان جیل کے اندر جب وہ اس پہ کنسرن تھے کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ جو اگر وہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو گیا مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور اس پہ وہ زیادہ پریشان تھے کہ دونوں طرف سارے مطلب بے گناہ لوگ ہیں، پاکستانی ہیں چاہے افغانی ہیں مسلمان ہیں، اور جانیں ضائع کرنے یہ بالکل نہیں ہے. ان کا دل تھا کہ مل کے بیٹھ کے بات کی جائے، بندوقوں سے حل نہیں ہوتا. یہ ان کو زیادہ فکر اس کانفلکٹ کی ہے. لیکن میڈم عمران خان صاحب کی رہائی بھی تو علی نے گنڈا پور صاحب اور وزیر اعلیٰ پہ جڑی ہوئی تھی کہ وہاں سے کوئی ورکنگ نہیں کی جا رہی تھی. ابھی یہ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں پاکستانی عوام کے ساتھ جڑی ہے عمران خان کی رہائی، پاکستانی عوام کے ساتھ جڑی ہے. اور عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا. اصل میں جس میں سزا ہونی ہے یہ آخری کیس ہے جو 3 سال پہلے مطلب قسط اس کی 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، توشہ خانہ اور القادر، یہ 2 کیسز سے شروع ہوا تھا. جب ان پہ بے گناہ ثابت ہو گئے کیس کے اندر، یہ ججز کو بھی پتہ ہے، لائرز کو بھی پتہ ہے، پروسیکیوشن کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. جو کیس پڑھتا ہے ان کو پتہ ہے، وٹنسز کے کاؤنٹ سے پتہ ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ آ گیا ہے. اور عمران خان کو کیا کہتے ہیں، آپ کہیں گے خراج تحسین پیش کریں کہ جس نے اس دن کہا تھا جب یہ کیسز شروع ہوئے تھے کہ میں اپنے کیسز کا عدالت میں سامنا کروں گا. آپ جتنے مرضی ججز کا کہہ دیں کہ ججز مجبور ہیں، ججز مجبوری میں کر رہے ہیں، لیکن جو ریکارڈ پہ چیز جا رہی ہے، جو ریکارڈ بن گیا ہے، وہ تو ججز کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، وہ نہیں تبدیل ہو سکتا. یہ جو ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ مکمل اتنا تفصیلی ریکارڈ تیار ہو گیا ہے، چاہے سائفر کیس ہو، چاہے توشہ خانہ ہو، اور چاہے القادر ہو، اور چاہے عزت کا کیس ہو. یہ سارے کیسز عمران خان نے ان کا 2 سال 3 سال سے سامنا کیا. اور جو توشہ خانہ جب یہ جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی لکھوائی عمران خان نے 2 دن لگا کر خود ڈیٹیل میں ایک جو سینٹنس تھی وہ خود عمران خان چیک کر رہے تھے اور انہوں نے اس کی کریکشن کیا. اور یہ کیس جب چاہیے سزا دے دے گا، یہ دینی ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ پہلے سے لکھی ہوئی سزا ہے. جج صاحب بھی پتہ ہے، بلکہ جج صاحب تو میں کہنا آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا کام کروں، سزا دوں اور جاؤں. اب جب عمران خان کو سزا ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کے لیے ہمیں جانا ہوگا ہائی کورٹ کے اندر. یہ وہی ہائی کورٹ ہے ڈوگر صاحب کا جس کے اندر ہمیں القادر کو 10 مہینے لگے. اب جا کر 16 تاریخ کو تاریخ لگی ہوئی ہے جو پرسوں ہے. اب دیکھنے والی بات یہ کہ پرسوں کو وہ سنتے ہیں، وہ انتظار کریں گے کہ توشہ خانہ میں سزا ہو جائے. آپ دیکھ لینا یہ 16 کو، اب یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ نہیں سنیں گے. یہ انصاف کے آج کل یہ حالات ہیں کہ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کیا اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے. تو لیکن عمران خان نے سامنا کیا ہے اور ان کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ انہوں نے کتنی ہمت کی ہے. وہ یہ آپشن تھی، یا جو لوگ کہتے تھے، جو سارے آگے کہتے تھے دیکھیں ڈیل کر لیں. ڈیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن عمران خان نے اقتصاد کے بے گناہ بھی ثابت ہو گئے اور انشاءاللہ میرے خیال میں ان کے پاس کسی کے پاس آپشن نہیں رہے گی ان کو چھوڑنے کی. کتنی دیر یہ ججز یہ آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے. وارنٹ ایک نہیں. دیکھیں ہمارے لائر جو
फैसल मलिक हैं, वो इस वक्त कहीं बाहर के इलेक्शन में थे और हम अब आपको पता है कि आजकल क्या हालात है सड़कों के। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, तो उनसे उन्होंने अस्तना मांगी थी, क्या कहते हैं, अस्तना मांगी थी, हाजिरी माफ़ी मांगी थी। तो उन्होंने उल्टा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। नॉन अवेलेबल है। आज की गिरफ्तारी तो नहीं होगी? एक नहीं है ना, 3 दफ़ा हो चुके हैं। कोई कभी एक कोर्ट दे देता है। देखिए मैंने इनको ये बात कही थी कि मैंने यहाँ अडयाला आए 2-2 कभी इस्लामाबाद में लगता है, अच्छा मेरा केस इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में लगता है, और कभी एक में भागे जा रहे हैं तो कभी लाहौर भागे जाते हैं, कभी इस्लामाबाद। एक ही दिन में 2 जगहों पे लग रहा होता है। एंड में एक दिन मैं बुध को यहाँ पिंडी के ATC में पेश हुई हूँ, मैं किसी चीज़ में पता नहीं वो अपनी हाजिरी लगा के गई हूँ। अगले दिन उसके अंदर पता चलता है कि जी अरेस्ट वारंट निकल आए। क्यों भाई? तो ये कोई इसका मतलब है कि जो 60 केसेस हैं, जिस वक्त इनका दिल करेगा ये अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, तो मैं क्या करूँगी उसके बाद? इसमें आपकी वकीला टीम को अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, उनको पता था, उन्होंने मेरे से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम एक दिन की उनसे अस्तना मांग लेते हैं। और जब ये बात हुई थी उस वक़्त हम यहाँ से जैसे आते हैं ना, अडयाला आते हैं, तो अडयाला भी चल रहा था। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि अडयाला कैंसिल हो गया। आपको पता है यहाँ रोज़ कभी एक कैंसिल होता है, एक बनता है, सारा दिन हमें उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। तो अगर मैं ये ऑप्ट करूं कि मैं पहले यहाँ हूँ इमरान खान के केस पे, अपने केस से पहले, तो मैं तो यही करूँगी। हमारे पास 2-3 मुलाकातें रह गई इमरान खान से। अगर कल वो केस करते हैं और अगर हमें यहाँ ना पड़ता तो फिर मैं यहाँ आऊँगी, और अगर अरेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं रोक तो नहीं सकती हूँ। तीसरी दफ़ा मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ, जिस वक्त मुझे लॉयर्स ने भी कहा है कि ये आपके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि जिस वक्त चाहे आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप कितने केसेस में जाकर हाजिरियाँ लगाएंगी? अगर आप 10-12 केसेस में अगर हाजिरियाँ लगाना शुरू हो जाए तो आप अदालत से ही बाहर नहीं निकल सकेंगी। अच्छा ये बताइएगा जो CLP के साथ हुआ उस हवाले से बताइएगा, जो मरीज के में एक ऑपरेशन हुआ उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और पीटीआई के दौर में भी इन पे जुल्म भी हुआ, तो बंदे भी मारेंगे। पाकिस्तानी हूँ मैं, हम पाकिस्तानी, हमें ये याद रखना चाहिए। जब मॉडल टाउन हुआ था, अब कुछ नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं मिली। 26 नवंबर हुआ, सज़ा नहीं मिली। तो जो तादाद इस किस्म की लोगों को कत्ल, और 9 मई को भी लोग मारे गए थे, शहीद हुए हैं, सड़क के ऊपर सर पे गोलियां लगी स्नाइपर राइफल से। तो जब ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इसमें कम तो नहीं होएंगी। बचना तो फिर ये तो किसी के साथ हो सकता है। कल सहाबी एहतजाज करेंगे तो गोली तो आप पे भी चलेगी। फिर एक दफ़ा आप एक इजाज़त दे दें, जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाए, इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, जजेस के पास आप जाएं, जजेस को तो जेल नहीं के वो अमला नहीं है, ASI नहीं पूछता, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं पूछता। तो आप मुझे बताएं कि कल आपके साथ किसी और के साथ ये होता है जो वहाँ पे इन्होंने इतना कत्लो गारत हुआ है, तो आप और हमारे साथ होगा, बारी तो आएगी ना सबकी। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे इस चीज़ के खिलाफ, जब बेगुनाह लोगों को इस तरह, अपने मुल्क के लोगों को, ये तो मकबूजा कश्मीर में आपने कभी नहीं सुना होगा होते हुए, तो अगर आप मकबूजा कश्मीर में ये नहीं होता, हाँ एक जगह होता है ऐसी चीज़, दुनिया में सिर्फ एक जगह जहाँ पे ये हो रहा है, दुनिया में, गाज़ा। ये गाज़ा में हो रहा है, उसके बाद ये पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आपको कोई और मुल्क का आपको पता है तो मुझे बता दें, किसी में ऐसे हुआ नहीं। कश्मीर में ये हालत, कश्मीर में ये नहीं हुआ कि 200-250 लोगों को आप घेर कर गोलियों से मार दें और उसके ऊपर ट्रक चला दें। अगर आपने कश्मीर में ये सुना है मकबूजा कश्मीर में होते हुए, तो आप मुझे दिखा दें। ये सानिया बहुत बड़ा है। मेरे मुलाकात ही नहीं हुई इमरान खान से। आज उन्होंने मुझे केस में जाने नहीं दिया था। तकरीर आपने मैडम की आपने तकरीर कल सुनी है? नहीं, उन्होंने कहा कि किसी की तकरीरें नहीं आज से ही काम शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह अच्छी बात है। करवा सकेंगे। देखें सारे मिलके करेंगे, हम क्यों नहीं हो सकता, इंशाल्लाह सारे हिम्मत करेंगे। जो लोग जिन्होंने कैद में डाला हुआ है, पहले आपको ये नहीं नजर आ रहा कि डरे हुए वो लोग हैं जिन्होंने कैद में डाला हुआ है, नहीं तो कैद में डालते क्यों?
जहाँ पे आप उनकी तस्वीर से भी डरते हो, तो कोई डर लग रहा है तो इमरान खान की तस्वीर की इजाज़त नहीं है, इमरान खान की आवाज़ की इजाज़त नहीं है। इमरान खान पे इतने खौफज़दा हैं, तो खौफज़दा तो वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को नाहक कैद में डाला हुआ है। तो ये डरते हुए ये तो रहेंगे, इनको तो आप कोई नहीं रोक सकते। लेकिन इमरान खान को अब जब केसेस ख़त्म हो गए और कौन सा केस बनाएंगे, अब मजाक बनता जाएगा ना। GHQ केस है, सीरियस केस GH की कहाँ से सीरियस है? नहीं, वो 86 का आपको केस मैं बता दूं कि आप यहाँ पे ये हमें यही लोग बता रहे हैं, ये जो प्रोसिक्यूशन के अंदर ही लोग हैं, उन्हीं से मैं आपको खबर बता देती हूँ कि जो उनका ख्याल है गेट पे चढ़ा था ना आदमी, वो तो कोई लैंड का बंदा है जो यहाँ पे ये DHA को लैंड सप्लाई करता है। और वो हाँ हाँ वो ये जो तस्वीर है जिसकी जो अंदर लेके गया है। तो अब मुझे बता दें, चलें ट्राई करें उसको। मेरी बात सुने, चलें ट्राई करें। जब GHQ खुलेगा ना, इससे बड़ा इंटरनेशनल मजाक बनेगा। फिर ज़रा GHQ बिल्कुल खोलें, और बिल्कुल खोलना चाहिए। आपने कभी देखा है दुनिया के अंदर उन लोगों ने पार्लियामेंट भी उन्होंने को आगे लगा दी। कभी आपने सुना वो कैपिटल हिल में घुसे थे, 7 एहलकार उनके मारे गए थे अमेरिका में। उनके ज़रा केसेस की लिस्ट निकालें। मॉब के अंदर इस किस्म की सज़ाएं नहीं दी जाती दुनिया में। मॉब के साथ जो मॉब को लीड करता है, लीडर्स को पकड़ा जाता है। तो जो GHQ में लीड कर रहा था ना, आप ज़रा निकालें उसकी फुटेज, आप ज़रा उन शख्सियात को ढूंढ लें, 1-2 को जो लीड कर रहे हैं। मैडम,